जय हिंद एवरीवन, मैं हूँ वैशाली। हम लोग एडवर्ब टॉपिक हमने कर लिया था। आज हम लोग एडवर्ब का ही रिवाइज करेंगे, कुछ सेंटेंसेस करेंगे एंड वी विल फाइंड आउट द एरर्स। ओके, आई विल गिव यू few sentences and you have to correct the sentences. You all are unmute, you can give the answers. Now let's start with the sentences. First sentence is, firstly you should think over the meaning of the words and then use them. चलिए जी, देखिए क्या एरर है इसमें। The driver tried his best to avert the accident by bringing the car to a suddenly stop. The Sunrise Hotel was fully equipped to offer leisurely stay to its clients. The technician reminded them to have a thoroughly cleaning of the machine after every use. चलिए जी, काइंडली फाइंड आउट द एरर्स। क्या एरर्स है? चलिए जी, बताइए अमन, करण, बताइए क्या एरर है? चलिए बताइए क्या एरर है अमन? हाँ जी, बोलो जी। मैम फर्स्टली नहीं आएगा। वेरी गुड, फर्स्ट में आएगा। फर्स्टली की जगह फर्स्ट यू शुड थिंक ओवर द मीनिंग ऑफ द वर्ड्स एंड देन यूज देम। नेक्स्ट इज second is सडन स्टॉप।
सडनली स्टॉप नहीं आएगा. The driver tried his best to avoid the accident by bringing the car to a sudden stop. Next. मैम लीजरली आएगा. हाँ, वो ऑलरेडी मैंने लेयरली लिखा है. लीजरली स्टे. मैम फिर एरर नहीं है इसमें. हाँ, इसमें कोई एरर नहीं है. एक्चुअली सेंटेंस कुछ और था, मैंने करेक्टली लिख दिया उसको. लीजरली. RELY. ठीक है. नेक्स्ट इज थोरो क्लीनिंग आएगा. yes, it is thorough cleaning of the machine. Clear to everyone? बाकी सबको क्लियर है? नेक्स्ट देखिए जी सेंटेंस. नेक्स्ट सेंटेंस इज he is very blind to read smallest of prints. इसमें क्या एरर है? बताओ जी. Smallest मैम नहीं वेरी. आएगा मैम. वेरी की जगह क्या आएगा? Is क्या आएगा? टू ब्लाइंड आएगा मैम. यस. टू ब्लाइंड. अमन, इसमें इज ब्लाइंड नहीं आएगा, इज टू ब्लाइंड, बिकॉज मैंने आपको बताया था कि टू इज ऑलवेज फॉलोड बाय टू. टू इज फॉलोड बाय टू, इट गिव्स द नेगेटिव सेंस. TOO. He is too blind to read the smallest of prints. Right. Now look at the next sentence. This is the more difficult piece of work I have ever undertaken. क्या एरर है इसमें? मैम मोर नहीं आएगा. हाँ, तो क्या आएगा? मोस्ट डिफिकल्ट. वेरी गुड. यार इजी सी सेंटेंस दे रही मैं आपको. हाँ. He ultimately decided to willingly and cheerfully accept the responsibility entrusted to him. बताइए जी क्या एरर है इसमें? मैम विलिंगली एंड चेयरफुली. तो फिर उसकी जगह क्या आएगा? विलिंग. हाँ, क्या आएगा फिर?
There is no error in the sentence. The sentence is correct one. Look at the next sentence. Somebody informed the contractor that his brother had only died 5 days before. देखिए जी क्या error है. She is very senior to me, so I cannot defy her orders. करिए जी फटाफट क्या आएगा? Who can believe that she was not hardly hit by the death of her father. चलिए जी क्या error है? 8th में somebody informed the contractor that his brother had only died. What is the error? मैम ओनली की प्लेसमेंट गलत है. हाँ तो क्या आना चाहिए? Died only. Yes, it will be that his brother had died only few days ago. Next is she is very senior to me, so I cannot defy her orders. ताहिरा आप कहाँ हैं? Much senior. Very good. It is much senior. Next is who can believe that she was hardly hit by the death of her father? मैम हार्डली नहीं आएगा इसमें. क्या आएगा? Hit hard. Very good. Not hit hard. Was not hit hard by the death of her father, because hardly लिखते हैं तो that will give the negative sense कि बिल्कुल भी नहीं. Yes ma'am. Exams में you do not have to write the answers, but यहाँ तो हम लोग कर रहे हैं. वहाँ तो सिर्फ आपको A part, B part, C या D में जिसमें error है वो दिखाना है. Now the next sentence is the house is very good, but too much small to accommodate the full family. क्या आएगा? Much too. But much too small. Yes. ये क्यों आया much too? मैम क्योंकि जो एडजेक्टिव से पहले यूज होता है मैम, टू मच.
बिकॉज ये क्या है, स्मॉल इज एडजेक्टिव, तो यहाँ होना चाहिए था मच टू। बाकियों को क्लियर है क्यों आया ऐसा? Only by discussing with the officer concerned, they found out the person behind the fraud. क्या एरर है इसमें? मैम ओनली की प्लेसमेंट हाँ, प्लेसमेंट गलत है तो कहाँ होनी चाहिए थी? by discussing only with the Very good. It will be by discussing only with the officer concerned. By discussing only with the officer concerned, they found out the person behind the fraud. Next sentence is hardly she likes to hear my name after the dispute which occurred between us last year. इसमें क्या एरर है? बताइए शाबाश, क्या एरर है? प्लीज मेक इट फास्ट. बताइए जी. कोई नहीं देखना. एरर तो है इसमें. काइंडली फाइंड आउट द एरर. Ma'am, she hardly likes to hear आएगा. नहीं. मैम hardly she does Hard person है तो like to थोड़ा सा hear. पास है. करण थोड़ा सा पास है इसके सेंटेंस. बोला तो है आपने, ठीक बोला है, बट उसमें क्या एरर है वो. hardly does she likes वेरी गुड. ये आपने she does. उससे क्या रूल अप्लाई किया या ऐसे ही बोल दिया?
मैम ये तो ऐसी गट फीलिंग से बोल दिया मैंने. Okay, but the exact is कुछ ऐसी adverbs है that takes the inversion case. Inversion case क्या है? Inversion case is, वैसे तो हम लोग पढ़ेंगे आगे, but inversion case is when verb comes before the subject. When verb comes before subject. अब he helps me. अब इसका इन्वर्जन केस कैसे होगा? व्हेन द वर्ब कम्स बिफोर द सब्जेक्ट. अदरवाइज क्या होता है? सेंटेंस की फॉर्मेशन क्या है? पहले सब्जेक्ट आता है, देन वर्ब आता है, देन ऑब्जेक्ट आता है. बट इन्वर्जन केस का फॉर्मेशन क्या है? पहले वर्ब आएगा, देन सब्जेक्ट, देन ऑब्जेक्ट. एंड इट इज ओनली इन केस ऑफ इंटरोगेटिव सेंटेंसेस. ये किसमें होता है? इंटरोगेटिव सेंटेंसेस में. अब जो इन्वर्जन केस है उसमें सेंटेंसेस हमारे इंटरोगेटिव नहीं है, but still we takes the inversion case. We take inversion case. Inversion case is when the verb comes before the subject. अब कुछ ऐसी adverbs हैं. Adverb कौन कौन सी है? जैसे hardly, no sooner, not, then never, so, etc. They always takes the inversion case. तो उस केस में क्या आएगा? जो आपका सेंटेंस है ये हार्डली. अब डज क्यों लगाया आपने यहाँ? बिकॉज यहाँ लाइक्स दिख रहा है, तो लाइक्स इज यूज्ड इन द प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस, इसलिए हमने सेंटेंस को करेक्ट कैसे किया? हार्डली डज शी लाइक टू hear my name after the dispute which occurred between us last year. Is it clear? अब इसी की जैसे एक और एग्जांपल बताती हूँ. He did not speak a single word. अब इसको अगर इन्वर्जन केस में अगर आपने लिखना हो तो कैसे लिखोगे? हाँ, कैसे लिखेंगे इसको? हार्डली he did not speak a single word. इसमें तो इन्वर्जन केस नहीं है, इसमें तो सिंपल वही है आपका, से पहले सब्जेक्ट है, देन वर्ब है, देन ऑब्जेक्ट है. बट इन्वर्जन केस कैसे होगा इसका? नॉट अ सिंगल वर्ड did she speak. क्लियर? ये पता चला क्यों आया ऐसे? नॉट अ सिंगल वर्ड डिड शी स्पीक. अमन, करण, एक और सेंटेंस देखिए. He hardly helps me. He hardly helps me. करिए इसको ठीक.
बोलो जी क्या एरर है, मतलब एरर नहीं है, कैसे इसको वो करेंगे? मैं आपको ऑप्शंस दे देती हूँ। हार्डली ही डज हेल्प मी, या फिर हार्डली डज ही हेल्प मी। कौन सा वाला करेक्ट है? Second one, hardly Yes. does he. हार्डली डज ही, बिकॉज इन दिस केस, इनवर्जन केस में हमारा जो सब्जेक्ट है वो वर्ब के बाद में होता है। वर्ब इज ऑलवेज आफ्टर द और बिफोर द सब्जेक्ट। और पहले ये हार्डली क्या है? ये हमारा एडवर्ब है। देयर आर फ्यू एडवर्ब्स दैट टेक्स द इनवर्जन केस, दे टेक द इनवर्जन केस। Next sentence is she was so tired that she could not speak a single word. राइट, इसमें क्या एरर है? मतलब कैसे करेंगे इसको? इन्वर्जन केस में कैसे लिखेंगे? अब पहले तो देखो ना, इसमें आपका एडवर्ब क्या है? इसका आएगा so tired was she that she could not speak a single word. Clear? Is it clear? नेक्स्ट एग्जाम्पल देखिए, he is too intelligent to make a mistake. क्या आएगा इसका? क्या एरर है इसमें? मैम एरर तो इसमें कोई नहीं है। यस, इसमें कोई भी एरर नहीं है। दिस इज द करेक्ट वन। ही इज टू इंटेलिजेंट टू मेक ए मिस्टेक, means he is so intelligent that he could not make any, he cannot make any mistake. Clear? आज मैं आपको इसकी एक असाइनमेंट भेज दूंगी, आप प्लीज वो बुक की असाइनमेंट कर ली आप सबने? Yes, ma'am. यस मैम। कल क्लास के बाद हम लोग बुक की असाइनमेंट को डिस्कस कर लेंगे। कल हम लोग नेक्स्ट टॉपिक स्टार्ट करेंगे, दैट इज एडजेक्टिव। एडजेक्टिव स्टार्ट करेंगे कल, ठीक है? चलो जी, दैट्स ऑल फॉर टुडे। जय हिंद एवरीवन। Jai Hind, ma'am. जय हिंद मैम।